So students, as we are done with the learning portion of how to make negative sentences and how to form questions, right? So we would start with exercise C, that is make appropriate yes or no questions from these sentences. Just like we saw that we can make a negative question or a positive question. It's upon you. Here in this exercise I have made some positive ones and one of them is negative. Okay, so let's see. First one, Ananya washes her clothes. So when we make a question, we first need to find out the verb. So here the verb is washes, right? और अनानिया क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वी आर गोइंग टू राइट डज अनानिया and along with does we are going to use verb base form. So does Ananya wash her own clothes? Let's see the second one. They have dinner at night every evening. So here they is the subject, right? And have is the verb. They have dinner at night every evening. So when we make a question, we would be using don't, right? Because they क्या है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो उसके साथ हमें क्या यूज़ करना है डू. अभी जैसे यहाँ पे मैंने नेगेटिव क्वेश्चन बनाया है, इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लगाया है. सो हियर आई हैव मेड अ नेगेटिव क्वेश्चन बिकॉज आई यूज्ड डू नॉट. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है डू नॉट यूज़ किया है. उसके बाद लिया है सब्जेक्ट डोंट दे हैव dinner at night every evening. If I want to make a positive question, I could have made do they have dinner at night every evening. It's on you whether you want to make a negative question or a positive question. Okay, now let's see the third one. She does not have a grandmother. Here नेगेटिव सेंटेंस है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? तो यहाँ पे शी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया और हैव हमारा वर्ब है, राइट? और उसके साथ नेगेटिव है, इसलिए हमने डज नॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है. नाउ व्हेन वी मेक अ क्वेश्चन, आई हैव मेड ओवर हियर अ पॉजिटिव क्वेश्चन. सो आई यूज्ड डज शी हैव अ ग्रैंड मदर. सो डज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन हैव. ओके, if we make a negative sentence, we can write doesn't she have a grandmother, right? Now let's see the fourth one. We make paper lanterns during Christmas and Diwali. Now over here हमारा सब्जेक्ट क्या है we है और make हमारा verb है. जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास बी वाला वर्ब नहीं है, मतलब इज एम आर नहीं है, इसीलिए हमने सब में डू और डज यूज़ किया है क्वेश्चन बनाने के लिए. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू यूज़ डू बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल. डू वी मेक, वो वैसे का वैसा ही रहेगा. डू वी मेक पेपर लैंटर्न्स ड्यूरिंग क्रिसमस एंड दिवाली. ओके, you need to make a question mark over here. Don't forget that. Okay, यहाँ क्रिसमस के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना. ठीक है, now let's see the next exercise which is on page number 62. Here you need to underline the incorrect verbs in this sentence and write the right verb in the blanks. So जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से जो वर्ब है वो गलत है. ठीक है, तो वो हमें चेंज करना है. So in the first sentence, the children are very clever. How quickly she write. Here first of all you can see child is singular, right? थर्ड पर्सन तो उसके साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा. और सेकेंड वन शी हाउ क्विकली शी राइट. हियर अगेन शी इज़ सिंगुलर, तो उसके साथ का जो वर्ब होना चाहिए वो एस वाला फॉर्म होना चाहिए, इसीलिए हमने एस ऐड किया है. So the sentence would be the child is very clever. She how quickly she writes. Okay, now let's see the second one. The stars in the sky is bright. Now here we are talking about the subject, that is stars, which is plural. तो उसके साथ is नहीं आता है, are आता है. ठीक है, the stars in the sky are bright. Third one, I is not well today. Here along with I we are going to use am. I am not well today. Fourth one, we is so bored today. Again we is plural, तो उसके साथ हमें क्या यूज़ करना है आर.
We are so bored today. And last one, Seema's elder brother are a doctor. Now here Seema's elder brother is third person singular, तो उसके साथ are नहीं आएगा, is आएगा. Seema's elder brother is a doctor. Okay. Now let's see exercise E. Looking at the picture, you need to complete the sentences. हमें क्या यूज़ करना है? Have, has, is, are और am. ठीक है. So याद रखना है हमें have किसके साथ यूज़ करना है? फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, यू सेकेंड पर्सन दैट इज सिंगुलर प्लूरल, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ. ठीक है. हैज़ हम ही शी इट के साथ यूज़ करेंगे. इज़ भी हमें ही शी इट मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ करना है. आर हम यूज़ करेंगे प्लूरल के लिए, राइट. आई, यू, वी और दे. और एम किसके साथ यूज़ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ आई, सॉरी एम यूज़ करेंगे हम लोग सिर्फ आई के साथ. ठीक है. So here I have written the answers. You can just note it down. Mr. and Mrs. Joshi have a nice house because they are two of them. ठीक है, ये दो है इसीलिए have यूज़ किया. Now the house has a garden. Again the word has is used for third person, that is singular. House क्या है? It के लिए यूज़ होता है, right? फिर थर्ड सेंटेंस, it has big window. It is again third person singular इसीलिए has आएगा. Now Naren is Neeta's brother and she is Neeta's sister. Now Naren is Neeta's brother. Naren is third person singular, तो उसके साथ is, और she के साथ भी is ही आएगा, वो भी third person singular है. Fifth one, Neeta has a brother and Naren has a sister. Again Naren एंड नीता बोथ आर थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए हमने हैज़ यूज़ किया है. नीता हैज़ अ ब्रदर एंड नरेन हैज़ अ सिस्टर. सिक्स्थ वन, नरेन हैज़ अ साइकिल एंड नीता हैज़ अ रैकेट इन हर हैंड. सो हियर ऑल्सो अगेन वी हैव यूज्ड हैज़ बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. एंड लास्ट वन, दे आर अ नाइस फैमिली. सो हियर यू कैन सी दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसीलिए उसके साथ हमने जो वर्ब यूज़ किया है वो है आर. ठीक है. सो आई होप दैट ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई है. ये जो वर्ब्स लगाते हैं वो सेंटेंस को सूट करते हैं, उस हिसाब से लगाना है. ठीक है. और सब्जेक्ट देख के लगाना है. नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज एफ. Anya's uncle is a famous writer. Dinesh has invited him for lunch. Complete the conversation between Anya and Dinesh using appropriate forms of the verbs in the brackets. दिनेश और अन्या के बीच का कन्वर्सेशन है. सो लेट्स सी व्हाट इट इज़. ओके. दिनेश हैज़ इनवाइटेड अन्याज अंकल, जो एक राइटर है. सो व्हाट डज दिनेश ask Anya? Anya, I have invited your uncle for lunch and I am wondering what to cook. Dash he a vegetarian? See over here they have already given the verb. उसका जो फॉर्म है वो अप्रोप्रिएट फॉर्म हमें यूज़ करना है. ठीक है. तो यहाँ पे ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? यू कैन सी वी हैव द सब्जेक्ट ही. ठीक है. तो सब्जेक्ट ही है और हमें कौन सा यूज़ करना है? फॉर्म बी वाला फॉर्म. तो बी वाले फॉर्म में कौन कौन से आते हैं? इज़ आता है, एम आता है और आर आता है. तो इन तीनों में से हम ही के साथ क्या यूज़ करेंगे? इज़ यूज़ करेंगे. ठीक है. तो हमारा आंसर क्या होगा? इज़ ही अ वेजिटेरियन? नाउ आनिया सेज और रिप्लाइज, नो दिनेश, ही डैश अ वेजिटेरियन. सी बी और नॉट का फॉर्म यूज़ करना है. अगेन ही इज़ द सब्जेक्ट दैट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम इज़ ही यूज़ करेंगे और नॉट यूज़ करना है. तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है इज़ेंट. ही इज़ेंट अ वेजिटेरियन. ही डैश फिश. यहाँ पे हमारा एक्शन वर्ड है जो है लाइक, और ही के साथ हम कौन सा वाला वर्ड यूज़ करेंगे? बेस फॉर्म विथ एस, इसीलिए हमने यहाँ पे लाइक्स लिखा है. ही लाइक्स फिश बट ही डैश मटन, और नॉट लाइक लिखना है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. सो व्हेन वी आर यूजिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर एज अ सब्जेक्ट, उसके साथ हमें डज नॉट ऐड करना है और वर्ब का बेस फॉर्म. सो होगा बट ही डज नॉट लाइक मटन. ही डैश चिकन टू. सो हियर ईट का फॉर्म यूज़ करना है वर्ब. सो जस्ट लाइक वी रोट इन ही
likes, वैसे ही हम लिखेंगे he eats chicken too. Okay, now Dinesh says, all right, dash he dash spicy food. So हमें क्वेश्चन बनाना है और हमारा वर्ब क्या है, लाइक है. तो हम क्वेश्चन किससे बनाएंगे, डज से, बिकॉज अगेन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है. सो डज ही लाइक स्पाइसी फूड. आनिया सेज नो ही डैश स्पाइसी फूड, और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. तो हमने क्या किया, डज नॉट और वर्ब का बेस फॉर्म. सो द आंसर वुड बी नो ही डजंट लाइक स्पाइसी food. So students, I hope that you are clear with this chapter, and if you have any doubt you can ask me in the live class. Okay, please complete exercise A, B, C and D in your textbook. आपको सिर्फ ग्रामर की टेक्स्ट बुक में ही ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है. And the last exercise, which is G, with a partner form at least 5 sentences using the words in these boxes. You must use the verbs in the forms given. You may use a box more than once. So here there are some words given in the boxes. ये use करके आपको at least 5 sentence frame करने हैं. So that is your homework which we would be checking during the live class. Okay. Till then, take care and see you soon, students.